So one more example based on type 1, I mean Fourier series in limit 0 to a. Okay, so already in last lecture we have solved almost four or five questions related to that. Okay. So one more example based on type 1. So first of all, uh, tell me what is the formula of Fourier coefficient A0, AN, BN for interval 0 to a. So that is 2 upon a, पानी दे 0 to a, f of x dx, 2 by a, 0 to a, f of x cos of 2n pi x by a, and 2 by a, 0 to a, f of x sine of 2n pi x. So these are the formula of Fourier coefficient in interval 0 to a. Now, in our question, the limit, overall limit of this question is lower limit is 0 and upper limit is 2, because here lower limit given, either upper limit given. So that means what? You have to substitute a equal to 2 in this formula. Then we will get the formula of a0. So that is 2 upon 2, yani ki nothing, 0 to 2, f of x dx, and an equal to, once again 2 upon 2, that is 1, 0 to 2, f of x cos of, here substitute a equal to 2, then 2 and 2 cancel, so finally n pi x dx. And similarly formula of bn is 0 to 2, f of x sine of n pi x dx. But in this question, there are two functions in different interval. In first interval 0 to 1, your function is pi x, and from 1 to 2, your function is pi in bracket 2 minus x. That means you have to split this integration 0 to 2 into two parts. First part from 0 to 1 and second part from 1 to 2. So once again I write the formula of a0 and split this integration, I mean 0 to 2 split in two part, that is first part is the 0 to 1 and function is pi x dx, and second part is 1 to 2, function is pi in bracket 2 minus x dx. Now integrate this function, where pi is a constant, integration of x is nothing but x square by 2 limit 0 to 1. Here once again pi is a constant, integration of 2 is 2x and x is nothing but x square by 2 limit 0 to 2. Now substitute the limits. So in first part that the limit is 1 minus 0 by 2, and in second part 2 into 2, that is 4 minus 4 by 2, this is upper limit, and for lower limit that is 0. Here not 0, that is 1, my mistake. So 2 minus 1 by 2, because here x equal to 1 and x equal to 2 minus 1 by 2. Now pi is a common from both, all terms, so taken outside, that is 1 by 2, and plus 4 minus 2, because this is nothing but 2, and here 4 minus 2 is nothing but 2, and minus 2 and plus half. We got, due to this minus, this internal minus become a plus. Now 2 and 2 cancel to each other, finally answer is 1 plus half is 1, then final answer is pi. Understood? Okay, so now find an. Now find the value of an. So that is an equal to, once again 0 to 1, pi x cos n pi x dx, and second part that is start from 1 to 2, our function is pi into 2 minus x into cos n pi x dx. Okay, because the function is, there are two function in different interval, first one is a pi x, second is pi into 2 minus x. Now again integrate both the integration. So here pi is a constant and apply u into v rule. So x as it is, and integration of cos is nothing but sine n pi x divided by
coefficient of x, that is n pi, minus derivative of x, that is 1, इसका derivative, that is 1, and इसका integration, so that will be minus cos n pi x divided by n pi, but already एक n pi यहाँ पे है, तो इसलिए n pi का square होगा. And in next round the derivative of 1 is 0, so no need to integrate further. So this is your first integration. In second part, once again pi is common, and here u is nothing but 2 minus x, and integration of cos is nothing but sine n pi x divided by n pi, minus derivative of 2 minus x, that is 0 minus 1, and again integration of sine, that is minus cos n pi x divided by n square pi square, and further integration derivative of this is nothing but 0, so no need to further integrate. So here limit is 0 to 1, and here limit 1 to 2. So now substitute the limit. जैसे कि मैंने आपको बताया कि sin n pi is always 0 and sin 0 is also 0. So first term में जब आप limit put करेंगे, so that is 0. Second term में cos बन जाएगा minus minus plus cos n pi, because x की जगह आप 0 put कर रहे हैं, n square pi square. Though this is the upper limit, minus lower limit, put x equal to 0, once again 0, and plus cos 0 is 1 divided by n square pi square. So this is the upper and lower limit of first integration, plus pi into, here substitute x equal to 2, therefore 0, minus minus minus, there are 3 minus, therefore finally minus, and cos of 2n pi, because x की जगह 2 put करो, n square pi square. This is upper limit. Go for lower limit. X equal to 1 put किया तो sin n pi is 0, that's why 0, minus minus minus, there are 3 minus, so once again minus cos n pi, because x की जगह आप 1 put कर रहे हैं, divided by n square pi square. So this is your second bracket. पाई को कॉमन लेते हैं बिकॉज दोनों टर्म के अंदर पाई है, इधर भी और इधर भी. रेस्ट पार्ट को लिख देते हैं cos n pi, डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, minus 1 upon n square pi square, minus cos 2n pi is 1 divided by n square pi square, इसका वैल्यू 1. Here minus and minus become a plus, again cos n pi divided by n square pi square. Okay, so in next step, cos n pi, substitute the value of cos n pi. So value of cos n pi is nothing but minus 1 raised to n. So cos n pi, there are two terms. So cos n pi and cos n pi, there are two terms. So finally we will get 2 cos n pi, and cos n pi, value of cos n pi is nothing but two times of minus 1 raised to n. And this one become once again 2. The whole divided by n square pi square. Now pi square is cancelled. So finally we will write 2 upon n square, minus 1 raised to n minus 1. So this is the value of an, 2 upon n square minus 1 raised to n minus 1. So this is the one of the answer. But you have to, if you want to change this answer, I mean further simplify, then apply concept of even and odd. So when n is odd number, so minus 1 raised to odd number is nothing but minus 1, already मैंने previous lecture में बताया. So this is minus 1, 2 upon n square minus 1 minus 1, and n is even, so that will be plus 1 minus 1, 2 upon n square. So second part is 0. So finally minus 4 upon n square, but n is the odd, and odd is nothing but, odd को हम लोग लिखते हैं 2n plus 1. So finally an is nothing but minus 4 upon 2n plus 1 the. So this is your second answer. I mean first answer is also correct, second both are correct. This is correct, this is also correct.
So this is the value of A. Now find value of Bn. Okay, so now find Bn of this question. So Bn equal to 0 to 1 pi x sine n pi x dx and 1 to 2 pi into bracket में 2 minus x into sine n pi x dx. So हम लोगों ने ये bn का एक्सपांड करके लिख दिया. अब इसके अंदर हम लोग once again apply u into v rule. So pi is a constant. Now according to u into v rule, x as it is, and integration of sine is nothing but minus cos n pi x divided by n pi minus derivative of x is that is 1, and integration of cos is nothing but sine minus is carry forward divided by n square pi square. So this is your first integration, limit is 0 to 1, plus second one is the pi into bracket mein. Once again apply into u into v rule. The 2 minus x is as it is. Integration of sine is nothing but cos n pi x divided by n pi, and now derivative of 2 minus x, that is minus 1, and integration of minus cos, that is minus sine n pi x divided by n square pi. And here limit is 1. Now substitute upper limit and lower limit in first part, I mean first integration as well as second integration. So in first one you can see that the x equal to 1. So finally we will get minus cos n pi divided by n pi, and sine term is always 0, I mean in terms of pi, therefore usko maine 0 likh diya. Now substitute 0 to 0 and cos sine 0 is also 0. So this is your upper and lower limit of first part. Now second part, that is pi into, substitute x equal to 2, therefore 0, and sine n pi is always 0. So upper limit is 0, go for the lower limit, put x equal to 1, therefore 2 minus 1 is 1, so minus cos n pi divided by n pi, and sine is multiple pi of 0, always 0. So this is your upper and lower limit of second part. Now pi is a constant common from both the terms, and minus cos n pi divided by n pi, and here minus minus become a plus sign, therefore cos of n pi divided by n pi. Now both terms are cancelled to each other, finally answer is 0. Now write the final answer of the Fourier series, the f of x equal to, that is a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity the an into cos n pi x plus summation n equal to 1 to infinity. एक्चुअली cos of 2 n pi x upon a होता है, बट a की जगह हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट कर रहा है, इसलिए sin pi x इधर बच रहा है. तो bn into sin n pi x. Now substitute the value of a0, an, bn like that. So f of x equal to a0 is nothing but pi by 2, and an का दो आंसर है. पहला आंसर था -2 अपॉन n स्क्वायर इंटू पाई -1 raised to n -1 into cos n pi x. So this is the first answer. अगर आपने an का पहला वाला आंसर सब्स्टिट्यूट किया, बट an का दो आंसर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके निकाला है. सेकेंड वाला अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो भी मैं लिख के देता हूँ. सो सेकेंड आंसर भी an का इधर निकाल के रखा है. देखो फर्स्ट आंसर निकाला, एक्चुअली -2 नहीं है ये, दैट इज अ +2, तो वहां पे हम लोग +2 कर देंगे, बट इधर -4 अपॉन 2n होल स्क्वायर है, बट फॉर ऑड दिस इज +2. So this is either or, any second answer, pi by 2 plus summation then -4 upon pi in bracket में 2n plus 1 the whole square. अगर इधर आपने n की जगह 2n plus 1 लिखा, तो इधर भी आपको n की जगह 2n plus 1 लिखना पड़ेगा. तो 2n plus 1 into pi into x, and n start from 0, not start from 1. So this is your second answer. ओके अब ये आंसर हो गया फाइनली. आपको कुछ इसमें हेंस डिड्यूस पार्ट भी है तो देख लेते हैं. यस, 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर लाइक दैट. तो पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं.
एफ ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू, सेकेंड वाले को ही एक्सपांड कर रहा हूँ, पहले वाले को भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे इधर तो दैट इज 1, माइनस 4 अपॉन पाई से कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर। एन की जगह 1 पुट करेंगे नेक्स्ट राउंड में, तो इधर 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, सो दैट इज कॉस 3x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, सिमिलरली कॉस 5x अपॉन 5 का स्क्वायर। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रूफ करना रहता है उसमें आइदर x इक्वल टू लोअर लिमिट या फिर x इक्वल टू 0 अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 यानी कि 1, इनमें से कोई एक पुट करने से आंसर आ जाता है। तो पहले 0 पे ट्रायल करते हैं, 0 पे अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड वाला देखेंगे। तो f ऑफ 0 माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई अपॉन 4 अपॉन पाई, cos 0 इज 1 तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन सॉरी 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना है उसमें ये टर्म आ गया। अब इसी का वैल्यू निकालना है, बट एफ ऑफ 0 देखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में क्या दिया था, दैट इज पाई एक्स व्हेन लिमिट इज 1 टू सॉरी 0 टू 1 एंड इफ 1 टू 2 देन आंसर इज द पाई इंटू 2 माइनस। बट आपको एफ ऑफ 0 निकालना है तो 0 यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसके अंदर पुट करेंगे। अगर 1 2 निकालना रहता तो इसको यहाँ पुट करते, और अगर 1 निकालना रहता वैल्यू ऑफ 1 तो इधर भी पुट करते, इधर भी पुट करते और दोनों का एवरेज निकालते। फिलहाल तो 1 पुट करना नहीं है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो दैट इज 0। तो ये 0 लाके यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फाइनल आंसर में, यहाँ पे। तो 0 माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, देन ये 4 से 2 इधर मल्टीप्लाई हो गए, फाइनली आप देख रहे हो कि पाई स्क्वायर पे 8 आ जाएगा। 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon 5 square. Dot dot hence proof. Finally, this is your answer. इसी क्वेश्चन में f of 1 निकालना रहता, f of 1 कैलकुलेट करना रहता, तो आप इसके अंदर भी 1 पुट करते, इसके अंदर भी 1 पुट करते। तो उधर 1 पुट करोगे तो पाई बनेगा, इधर 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1, और फिर दोनों आंसर का एवरेज लेते हैं। तो अगर आपको f of 1 कैलकुलेट करना रहता है तो आंसर इज पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 2, आंसर इज पाई, क्योंकि 1 दोनों जगह लाई कर रहा है, इधर भी लाई कर रहा है और इधर भी लाई कर रहा है। और 2 अगर पुट करना है तो सिर्फ इसके अंदर पुट करेंगे, और 0 पुट करना है तो सिर्फ इसके अंदर। ये 0 के लिए, यहाँ 2 के लिए, लेकिन अगर 1 पुट करना है तो दोनों में करेंगे। तो होप सो कि आपको ये पूरा फंडा समझा है। फिलहाल तो यहाँ 1 पुट करने की जरूरत नहीं है और जो चाहिए वो मिल भी गया। तो दिस इज योर टाइप 1, इससे रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। सो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। सो नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो सारे टाइप्स को बता देता हूँ। उसमें इवन ऑड का फंडा जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है इन फर्स्ट लेक्चर, बट वंस अगेन सारी चीज़ों को वापस से रिकॉल कर ले। टाइप 2 मतलब लिमिट इज माइनस ए टू, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट इंटरवल 0 टू ए, अगर 0 टू 8 इंटरवल है तो उसको हम लोग टाइप 1 बोला है। एंड अगर इंटरवल सपोज दैट माइनस ए टू है तो उसको हमने टाइप 2 बोल दिया। ऐसा कोई टाइप 1 टाइप 2 ऐसा नहीं है, बट इट इज अनदर थिंग, दिस इज द सेकंड, मतलब डिफरेंट थिंग। वो लिमिट 0 टू ए है तो उसके लिए अलग फोरियर सीरीज के फॉर्मूले है, और माइनस ए टू है तो उसका अलग फॉर्मूला है। तो इसके लिए उसको हम लोग अलग टाइप 1 टाइप 2 बोल रहे हैं। एक्चुअली कोई टाइप 1 टाइप 2 ऐसा करके है नहीं, हम लोगों ने सिर्फ उसका नेमिंग किया हुआ। बट ठीक है, माइनस ए टू ए के लिए ए जीरो के फॉर्मूलेस क्या है, तो दैट इज मैंने लिख के दिया था, दैट इज 1 अपॉन ए माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन का फॉर्मूला 1 अपॉन ए 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी नॉट डी एक्स, इधर कॉस का भी टर्म आएगा, कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए, एंड बी एन इक्वल टू 1 अपॉन ए 0 टू ए एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए डी एक्स। तो ये हो गया अगर फंक्शन आपका इवन नहीं है, ऑड नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको इवन ऑड का फंडा बताया था। बट कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप में हमको एडवांटेज मिलता है अगर इवन ऑड का कंसेप्ट मिल गया तो, आई मीन अगर पता चल गया कि फंक्शन इवन है तो उसमें आपको इंटीग्रेशन का रूल के अकॉर्डिंग एडवांटेज मिलता है, कुछ कोएफिशिएंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आई मीन जीरो हो जाता है। तो ये सारा चीज मैंने लास्ट एक फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करके दिया था आपको। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ।
प्रूफ नहीं बताता, बट हल्का सा हिंट तो मैं दूंगा ही, सो दैट आपको सारी चीजें याद आ जाए। इतना याद रखो कि अगर -a to a है और इवन फंक्शन है तो आंसर ट्वाइस 0 to a हो जाता है, और -a to a है और ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 हो जाता है, और इवन इंटू इवन इवन होता है, ऑड इंटू ऑड इवन होता है, और इवन इंटू ऑड ऑड होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने हिंट दी है। अभी फंक्शन इवन है, तो इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली a0 का जो वैल्यू है 2/a 0 to a f of x, क्योंकि हमने ये एज्यूम करके किया है कि फंक्शन इवन है। an के बारे में देखते हैं, तो फंक्शन इवन है बट फंक्शन के साथ में एक कॉस का टर्म है, और कॉस ऑलवेज इवन होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो इवन इंटू इवन इवन हो गया, तो ऑन सेकेंड दिस इज द इवन, ये -a to a है, माय मिस्टेक। सो once again 2/a 0 to a f of x cos of n pi x divided by a dx. Now think about bn. f of x is the even function, ऐसा assume किया है हमने, और sin is always odd function, तो even into odd finally bn will be 0, so no need to find bn if function is even. So that is your advantage. Otherwise अगर आपने even odd का फंडा यूज नहीं किया तो then you have to find the a0 an bn all, and लास्ट में अगर even function है तो bn पूरा सॉल्व करके वन पेज के आंसर के बाद आपको 0 ही मिलेगा, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो बेटर ये है कि इवन ऑड का फंडा आप यूज करो। ये फंक्शन इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना, ऑड है तो दूसरा देखते। तो फंक्शन अगर ऑड है तो जैसे कि मैंने बताया 0 हो जाएगा, an भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉस इवन होता है और fx ऑड लिया है, तो ऑड इंटू इवन ऑड, आंसर 0। bn के बारे में सोचते हैं, fx ऑड है और साइन भी ऑड होता है, तो ऑड इंटू ऑड इवन हो जाता है। ऐसे केस में 2/a 0 to a f of x इंटू साइन ऑफ n pi x डिवाइड बाई dx। तो ये एडवांटेज हम लोग यूज करेंगे, बट अगर फंक्शन इवन नहीं है, ऑड भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये तीन यूज करने पड़ेंगे। अगर इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, और इवन है ऑड है, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर ऐसा हो जाता है जैसे कि आपने देखा। तो अभी चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो इसमें लिमिट, ओवरऑल लिमिट आप देखें तो -π से स्टार्ट हुआ है एंड पाई पे जाके रुक गया है, तो ओवरऑल लिमिट इज -π to π, यानी कि -a to a से मैच हो रहा है, जिसमें एक ही जगह हम लोग को पाई पुट करना है फॉर्मूले। वो बात की बात है, पहले ये चेक कर लेते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ऐसे सिनारियो में जब फंक्शन के अंदर टू अलग अलग फंक्शंस दिए रहते हैं, तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करके इवन ऑड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और जो भी लिमिट दिया है उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो -π का एक लिमिट है, फिर बीच में एक 0 है जहाँ पे आपका y एक्सिस होगा, इसको मैं y एक्सिस बोल रहा हूँ, और फिर बाद में पाई है। अब ये इसके अंदर आपको पुट करना है, x की जगह -π। सो -π पुट करेंगे अगर x के अंदर, तो -π प्लस π/2 इज -π/2, तो फाइनली आंसर इज -π/2। -π/2 मतलब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसको बोलेंगे -π/2, बिकॉज आपने x की जगह -π। अब इसी फंक्शन के अंदर जो सर्कल किया है 0 पुट करो, तो +π/2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 0 पे आंसर इज +π/2। नाउ अब सेकंड सेकंड वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके अंदर आप 0 पुट करो तो भी आंसर π/2 आएगा, तो अभी भी 0 पे π/2 ही रहेगा, कोइंसिडेंट हो गया। पाई पुट करोगे तो π/2 माइनस पाई इज द -π/2, यानी कि पॉइंट नीचे चला गया माइनस। सो देयर आर 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है, अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ और फिर इस सेकंड से थर्ड पॉइंट को भी ज्वाइन करता हूँ। सो आप ध्यान से देखेंगे कि y एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है, मतलब जैसा y एक्सिस के लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसे y एक्सिस के राइट साइड में दिख रहा है। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये पता चल गया कि f of x इज द इवन फंक्शन। ये जैसा इधर दिख रहा है वैसे इधर भी दिख रहा है। ओके एक और एडवांटेज यहाँ मिल सकता है, बिकॉज आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा रहेगा कि अगर किसी फंक्शन को उस इंटीग्रेट करते हैं एक प्रॉपर लिमिट में, तो इसको हम लोग बेसिकली एरिया बोलते हैं। तो आप a0 के फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि आपका जो a0 में फॉर्मूला है दैट इज 1/a माइनस a to a f of x, तो बेसिकली ये एरिया है, एरिया अपॉन ए, ये तो ए रहेगा ही रहेगा।
बिकॉज इसको एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो एरिया, यहाँ पे ये जो एरिया है, मैं ये पूरा एरिया, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस साइन के साथ, और यहाँ माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों सेम एरिया कट जाएगा, इधर भी प्लस के साथ और ये माइनस का एरिया कट जाएगा। तो फाइनली देखा जाए तो बिना सॉल्व किए ही आपको यहाँ पे ए जीरो का वैल्यू 0 मिल गया। क्योंकि इवन फंक्शन है तो आपको ए जीरो निकालना रहता है। यहाँ देखो इवन फंक्शन है तो आपको ए जीरो कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है, बी एन तो ऑलरेडी जीरो है। बट ग्राफ का सिमेट्रिक ऐसा है कि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया बिलो द वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ए जीरो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप सॉल्व करोगे फॉर्मूले से तो भी वही आंसर आएगा, तो ए जीरो भी जीरो हो गया। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं ए एन पे। तो ए एन का फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/a माइनस 0 टू ए, इवन फंक्शन के लिए 0 टू ए एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ए की जगह पाई पुट करना है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन का लिमिट माइनस ए टू ए की जगह माइनस पाई टू पाई है, माइनस ए की, तो ए की जगह पाई पुट करना है। तो अभी हमने तो मास्टर फॉर्मूला लिखा है यहाँ से, ए एन का ये मास्टर फॉर्मूला लिखा। अब इसमें ए की जगह में पाई पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और फिर फंक्शन पुट करके इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स cos n पाई, बिकॉज x की जगह a की जगह पाई पुट करोगे तो पाई पाई कट जाएगा, तो nx हो जाएगा, nx dx। ओके, अब इसमें फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो फंक्शन आपके पास टू फंक्शंस है, मैं वापस चाहिए तो यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ आपके लिए। ये फंक्शन में एक फंक्शन है माइनस पाई से लेके 0 के बीच में, जिसका वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एक्स है, और दूसरा फंक्शन है पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 से लेके पाई के बीच में, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। बट हमारा जो फॉर्मूला मॉडिफाई होके आया है उसमें लिमिट 0 टू पाई आया है, तो हमें 0 टू पाई के लिए जो फंक्शन है वही लिखना है। 0 टू पाई के लिए जो फंक्शन है वही लिखना है। ये 0 टू पाई के लिए जो फंक्शन है वही लिखना है, बिकॉज आपका फॉर्मूला मॉडिफाई होकर 0 टू पाई बन गया। अगर माइनस पाई टू पाई लिमिट रहता था तो आपको माइनस पाई टू 0 में पहला फंक्शन और पाई टू में दूसरा फंक्शन लिखना पड़ता। बट आपका ऑड इवन की वजह से ये वाला इंटीग्रेशन डिलीट हो गया, उसी वजह से तो 2 टाइम्स हुआ ना, तो यहाँ पे 2/पाई आएगा। यहाँ पर भी हम 2 पाई पाई लिखा ही रहेगा, देखो यहाँ 2। अब यहाँ फंक्शन में हम लोग जैसे कि डिसाइड हो गया कि कौन सा फंक्शन लेना है, तो फंक्शन हमको लेना था पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन बाय यूजिंग u into v rule. So 2/pi, apply u into v rule. So that is pi by 2 minus x, that is u as it is. Integration of cos is nothing but sin nx divided by n minus derivative of this term. So that will be 0 minus 1, and integration of this one, that is minus sin nx divided by n square. Further derivative of this term is 0, इसलिए आगे नहीं जाएंगे, and limit 0 to pi. Now substitute upper limit, that is pi. So here x equal to pi, so pi by 2 minus pi is nothing but minus pi by 2, and sin pi is 0, so no need to put here, but फिर भी चलो मैंने put कर दिया था, कोई बात नहीं, but this is 0. Here minus minus there are 3 minus, so sorry, यहाँ पे sin का integration is minus cos, not sin. So minus cos n pi divided by n square, this is upper limit. Go for the lower limit, 0 put किया तो sin 0 is 0, that's why 0, and cos 0 is 1, but there are 3 minus, so minus 1/n. So 2/pi, this term is 0, so finally minus cos n pi divided by n square, and minus minus plus, that is 1/n square. Now n square को common लेंगे तो 2/pi n square and 1 minus cos n pi. And what is the value of cos n pi? So that is pi upon n square, 1 minus minus 1 raised to n. So this is the value of n. This is the one of the answer. If you want to change this answer in another form, then you can change by using odd and even concept. If n is the odd number, even number, then
you can change this answer like that. So if n is odd number, so you know already minus 1 raised to n, minus 1 raised to n, if n is odd then answer will be minus 1. So due to this minus already is become plus, so 4 upon pi into n square. And if n is the even number, so minus 1 raised to n, this term is plus 1, the plus 1 minus 1 both are cancelled, the answer will be 0. So once again n equal to 4 upon, now substitute n equal to odd number, and odd को हम लोग लिखते हैं 2n plus 1. So this is another form of this answer. दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं. Finally, write the Fourier series of this question. F of x equal to, that is a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an into cos of n pi x divided by a plus summation n equal to 1 to infinity dn into sin of n pi x divided by a. बट जैसे कि मैंने बताया कि एक ही जगह आपको पाई पुट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स और ए जीरो का वैल्यू जीरो मिला है, ए एन का वैल्यू आपके सामने ही लिखा है. हाँ, जब भी आप ऑड इवन वाला आंसर ये आंसर लिखोगे तो इसमें इनका स्टार्टिंग जीरो से करते हो, 0 1 2 3 लाइक दैट. यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन की जगह पे 4 अपॉन पाई इंटू 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, इधर एक ही जगह पाई पुट करना है जैसा कि यहाँ मैंने बताया, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट माइनस ए टू ए नहीं है, माइनस पाई टू पाई है, तो एक ही जगह पाई पुट किया तो पाई कट के कॉस एन एक्स बच गया. एंड इस केस में बी एन तो जीरो ही होता है, क्योंकि इवन फंक्शन में नो नीड टू फाइंड द बी एन. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. देखते हैं कुछ इस क्वेश्चन में हेंस डिड्यूस पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करेंगे. So let's see. Yes, there are two hence reduced part. First one in terms of square and second one raised to 4. So आपका जो an का आंसर है उसमें n का डिग्री कितना है, 2 है. अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा. इसका मतलब कि, और आपको एक 4 वाला पूछा है, दैट मीन्स कि आपको पार्सेवल्स आइडेंटिटी भी यूज करना पड़ेगा. तो कभी भी an का स्क्वायर करके आंसर में कुछ दिया है तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करेंगे, और सिर्फ स्क्वायर ही दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर दिया था, आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 मतलब 1 3 4 5. तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीधा सीधा x की जगह 0 पुट करके निकाल लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस सम में किया. तो ये सब में आते हैं, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 0 पे ये f ऑफ 0 इक्वल टू, and this is cos 0 is 1, 4 upon pi, cos 0 is 1, 1 upon 2n plus 1 the whole square. Now expand this one, इसको expand करो, 4 upon pi को बाहर निकालो, n की जगह 0 पुट करो, तो 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon 5 square. आपने n की जगह 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे पुट कर दो. तो 1 पुट 0 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो 3 हो गया, 2 पुट किया तो 5 हो गया. तो जो चाहिए वो मिल गया. बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ f ऑफ 0? तो मैं वापस आपको फंक्शन लिख के दिखाता हूँ कि फंक्शन में लिखा था माइनस सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड सेकेंड फंक्शन इज पाई बाई 2 प्लस एक्स. पहले वाले का लिमिट था माइनस पाई टू 0 एंड दूसरे का 0 टू एक्स पाई. तो आपको 0 यहाँ भी पुट करना है, 0 यहाँ भी पुट, इसमें भी 0 पुट करेंगे, इसमें भी 0 पुट करेंगे, और दोनों आंसर का ऐड करके एवरेज ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था. एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट में भी पुट करो तो पाई बाई 2 माइनस 0, सेकेंड में भी पुट करो तो पाई बाई 2 0 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली आंसर इज पाई बाई 2. So here you can see that the final answer is pi by 2 of f of 0. Now put f of 0 equal to pi by 2, then you will finally get pi by 2, here pi by 2, this is equal to, this is final answer, this is pi by 4, and 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon 5 square. Now ये 4 by pi को इधर multiply कर देंगे तो then finally we will get the pi square by 8. Pi by pi square by 8, that is 1 upon 1 square, 1 upon 3 square, 1 upon. So this is your first part. For second part, you have to use the parcels identity. So what is the parcels identity for?
माइनस ए टू ए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ करके लिया था, मैं वापस से वो पीडीएफ शो करता हूँ सो दैट आपको याद आ जाए, या फिर किसी ने नोट डाउन किया है तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, शायद किसी ने नोट लास्ट टाइम नोट तो किया था मैंने, सारी चीजें आपको नोट करने को बोला था, बट to a. हाँ माइनस ए टू ए लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ किया है फोरियर सीरीज। Yes. देन Yes. यस टेल Yes. मी। 1 upon a integration minus a to a f of x whole square dx इक्वल टू is equal to a0 square by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity under bracket an square plus bn square. so this is the minus a to a, okay, but here function is even, right? तो इवन फंक्शन है तो क्या क्या चेंजेस होंगे इस फॉर्मूले में, बोलो कौन बताएगा? साक्षी आप बता रहे हो, अतुल आप ही बताओ। फंक्शन इवन है तो क्या क्या चेंजेस होता है? इवन फंक्शन के लिए जो माइनस ए का इंटीग्रेशन है दैट इज ट्वाइस जीरो टू ए हो जाता है, और बी एन जीरो हो जाता है इवन फंक्शन में। Yes. तो उसके अकॉर्डिंग जरा बताओ क्या क्या चेंजेस करूं। यस टेल मी। यस एनी अदर स्टूडेंट? सर वही a0 और an का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन भी तो माइनस ए टू ए का जीरो टू ए हो जाएगा, एंड हाँ बराबर। और बी एन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए एन हाँ बचेगा। खाली an और a0 का वैल्यू तो पहले इसमें लेफ्ट आना। साइड का बताओ फिर राइट का सोचते हैं। पहले पार्सेवल्स आइडेंटिटी इवन फंक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ये जो पार्सेवल्स आइडेंटिटी है दैट इज माइनस ए टू ए के लिए, बट सिंस एफ ऑफ एक्स इज द इवन फंक्शन देन ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या होगा मॉडिफाइड होके, वो बताओ। लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस करूं मैं? ये 2 इंटीग्रेशन upon माइनस ए टू, हाँ बोला। 2 upon a 2 अपॉन ए integration of 0 to इंटीग्रेशन a जीरो टू ए f of एफ x ऑफ एक्स द होल स्क्वायर डीएक्स। एंड राइट साइड में क्या चेंजेस होगा? ए जीरो स्क्वायर बाई टू रहेगा, ए एन भी रहेगा, और बी एन क्या हो जाएगा? 0 क्योंकि इवन फंक्शन में बी एन जीरो होता है। तो दिस इज योर पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर इवन फंक्शन इन जीरो टू माइनस ए टू। Now substitute the value of a0 an and a equal to pi, because limit of this question is 0 minus pi to pi. Therefore a is nothing but pi. तो a की जगह लिमिट में जो a है वहां पे pi पुट करेंगे, इधर भी pi पुट करेंगे, एंड a0 का वैल्यू कैलकुलेट किया था 0 आया, an का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है सो दैट इज 1 टू इन्फिनिटी, एंड an में दो मैंने कैलकुलेट किया था, एक ये आंसर लिख के लिया है और एक ये लिया है, बट ये दूसरा जब आंसर आप लिखते हो तो एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो से करते हो, और पहला वाला जब आंसर लिखोगे तो एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 2 3 डॉट डॉट जाएगा। बट हम लोग दूसरा आंसर लिखते हैं बिकॉज ये सिंप्लीफाइड है, ये थोड़ा बड़ा सा आंसर है, ए एन का यहाँ पे बड़ा आंसर है, यहाँ छोटा आंसर है, इसको लिखेंगे और लिमिट को एन जीरो टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो ये छोटे छोटे चेंजेस यहाँ करेंगे, तो यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी हो गया, एंड ए एन क्या लिखा हुआ था यहाँ पे जरा बताओ। सो दैट इज 4 अपॉन, इधर गया, इधर सर्कल किया उसके अंदर ही है, लोड हो रहा है, यस 4 अपॉन पाई टू एन प्लस वन द होल स्क्वायर। तो ये पूरा हम लोग लिख देंगे यहाँ, 4 अपॉन पाई टू एन प्लस वन, और अकॉर्डिंग टू पार्सेवल्स आइडेंटिटी इसका कंप्लीट स्क्वायर, बिकॉज ए एन का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे फॉर्मूले में, ए एन का स्क्वायर लिखा है। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना। तो एफ ऑफ एक्स जैसा कि मैंने बताया कि देर आर टू फंक्शन, एक पाई बाई टू माइनस एक्स और एक पाई बाई टू प्लस एक्स, बट पहले वाले का लिमिट है माइनस पाई टू जीरो, एंड दूसरे का लिमिट है जीरो टू पाई। आपका जो फॉर्मूला इधर मॉडिफाई हुआ है जीरो टू पाई में हुआ है, तो हैव टू सब्स्टिट्यूट पाई बाई टू प्लस एक्स। तो टू अपॉन पाई जीरो टू पाई, and here pi by 2 plus x bracket close the whole square dx, and this is equal to 4 ka square is 16, pi ka square is a pi square, summation of n equal to 0 to infinity 1 upon 2n plus 1 whole raised to 4. Now simplify both side, I mean here integrate this function, so 2 upon pi, integration of this function is very simple, that is pi by 2 plus x whole raised to 3 divided by 3, and limit is 0 to pi,
here 16 upon pi square. Now substitute n equal to 0 first value. So if n equal to 0, then we will get the 1 raised to 4. Then put n equal to 1, then we will get 3, and like that. तो ये इसका वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग एक साइड में लेते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले यहाँ पे x की जगह पाई पुट करके देखते हैं, तो 2/3 पाई, बिकॉज ये 3 है, एंड हियर x इक्वल टू हम अगर 0 पाई पुट करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई। सो आई मीन मैंने मिस्टेक कर दिया है, 1 मिनट चेकते हैं, फंक्शन वापस देखते हैं क्या है। फंक्शन चेक करना जरूरी है क्योंकि मैंने फंक्शन ही उल्टा लिख दिया है शायद से। ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, फर्स्ट 0 पाई यहाँ पे माइनस है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, मैंने तो यहाँ मिस्टेक कर दिया। सो मैं वहां पे चेंज करता हूँ। सेकेंड लेवल में जो फंक्शन है दैट इज हियर प्लस और हियर माइनस है, तो मुझे यहाँ माइनस वाला लेना है बिकॉज अपना लिमिट 0 टू पाई में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये ड्यू टू माइनस ये डिवाइड बाई -3 होगा, आई मीन कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 उसका भी डिवीजन होगा। अब पाई पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई दैट इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का क्यूब, एंड 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2 का क्यूब इक्वल टू 16 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये एज इट इज 1/1 लाइक दैट। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लास्ट में परफेक्टली लिख दो। फिर ये पाई बाई 2 का क्यूब करोगे तो पाई क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, और माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो दोनों साइन माइनस के साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो ये पूरा ब्रैकेट क्या आएगा। ये माइनस पाई क्यूब बाई 8 आएगा, और ये भी माइनस पाई क्यूब बाई 8 आएगा, मतलब पाई क्यूब 8 बीच में माइनस है, बोथ आर माइनस, तो माइनस पाई क्यूब बाई 8 और अगेन माइनस, तो 2 टाइम्स हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर का मैटर, ये -2/3 पाई, दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये पूरा पोर्शन एज इट इज। लास्ट में देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये पाई स्क्वायर को इधर लेके आ जाए, ये जो टर्म है ना इधर का पाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो फाइनली ये 4 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 8, क्योंकि पाई क्यू से पाई कट गया, इनटू ये पाई स्क्वायर इधर आ गया डिवाइड बाई 60, दिस इज इक्वल टू 1/1 1/3 एंड 1/5 लाइक दैट। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ, तो पाई स्क्वायर पाई/4 एंड ये 4 से 8 कटेगा दैट इज 2, तो 2 इंटू आई मीन 6 इंटू 16, यस टेल मी 6 into 16. Tell me what is the calculation of that. I'm waiting from your side. 96. 96. So that is 96, the 1 upon like that. So this is your second part, hence proof. You can check it in the original question. Okay, so this is your question number 8. Just a second. सब लोग आगे निकल गए। So first part and second part दोनों यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दे दिए जैसा कि आपने देखा। ओके, सो टाइप 2 यानी कि लिमिट इज -a to a, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, यानी कि जब फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं एंड लिमिट इज -a to a, so in that situation you have to check the given function is odd or even, because if function is even then no need to find the bn because bn is 0, and if f of x is the odd function, in that case no need to find a0 an because both are 0 and only calculate the bn. But this facility only applicable for when interval is given -a to a. If interval is given -a to a, then you think about the even and odd function. But if limit is given 0 to a, then no need to think about the even and odd function because वहां पे आपको even odd का कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इवन ऑड चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो आप एक खुद से होके x की जगह -x पुट करो, सिंप्लीफाई करो, लास्ट में आपका f of x आना चाहिए। अगर आया तो इवन फंक्शन है, माइनस के साथ आया तो ऑड आया, बट अगर कुछ नया ही आ गया इसका मतलब इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं। तो ये भी एक टेक्निक है जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, आई मीन सॉरी फर्स्ट लेक्चर में, एंड ग्राफिकल मेथड से भी सिखाया था। तो मैंने ग्राफिकली यहाँ पे सिखाया, और ऐसा ग्राफ बनाने का एक और एडवांटेज मिल गया कि
जो a0 होता है दैट इज द एरिया अंडर द कर्व f ऑफ x। तो यहाँ पे एरिया आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली प्लस एंड माइनस बोथ आर कैंसल टू ईच अदर। तो फाइनली a0 इज नथिंग बट 0 बिकॉज अपर पार्ट का एरिया एंड लोअर पार्ट का एरिया दोनों सेम है। और ऐसे तो बिना a0 को फॉर्मुलेट करने से, मतलब फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करने से डायरेक्टली हमको एरिया एरिया से ही कैलकुलेट कर ले a0 इक्वल टू 0 मिल गया। अदरवाइज अगर आपको एरिया कंसेप्ट नहीं जम रहा है देन यू कैन फाइंड द आल्सो a0 बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर आपको एक ही जगह पाई पुट करना है और फिर माइनस पाई टू पाई का 0 टू पाई हो जाएगा बिकॉज फंक्शन इज लीनियर फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज पाई बाय 2 माइनस x एंड इंटीग्रेट एंड पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a0 इक्वल टू 0। तो आपको ये 5-6 लाइन करके फिर मिलेगा यहाँ एरिया का भी एडवांटेज। तो वो भी एक टेक्निक है, दैट इज एनालिटिकल मेथड, दिस इज ग्राफिकल। बट an कैलकुलेट करने का मतलब एरिया नहीं है बिकॉज f ऑफ x का एरिया नहीं है, बिकॉज f ऑफ के साथ यहाँ पे cos का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया इसका एरिया an में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन के साथ cos भी आ गया। तो दिस इज नॉट एरिया ऑफ f ऑफ x, दिस इज द एरिया ऑफ f ऑफ x इनटू cos x। अब f ऑफ x इनटू cos x का ग्राफ क्या है वो तो हमने बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको ग्राफिकली ना सॉल्व करके हम लोग इसको एनालिटिकली सॉल्व किए और फाइनली an का यहाँ पे आंसर मिला। फिर bn निकालने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो तो ऑलरेडी 0 होता है इवन फंक्शन के केस में। और फिर उसमें एक पार्ट नॉर्मल x इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेट कर लिया और दूसरा पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करके किया। पार्सेवल्स का भी यूज करना है जब आपका पावर रेस टू 4 या रेस टू 6 हो। आई मीन जो भी an में n का पावर है, an में आप देख रहे हो कि n का पावर यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि आप पार्सल्स में स्क्वायर करते हैं an स्क्वायर तो उसका पावर 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे an का जो पावर 2 है उसका स्क्वायर करके 4 आया, इसलिए वो वहाँ पे 1 रेस टू 4 2 रेस टू 4 लाइक दैट ऐसा दिया हुआ। अगर ये n का पावर 3 रहता था तो पार्सेवल से रेस टू 6 वाला क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिला कि ये पार्सेवल से ही सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। सो ये था टाइप 1। टाइप 2 आज हम लोगों ने टाइप 1 का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। लास्ट लेक्चर में 0 टू 2 पाई कर रहे थे कंटिन्यूसली, तो हमने एक 1 टू 2 का भी लिमिट ले लिया क्योंकि लिमिट कुछ सॉरी 0 टू 2 का लिमिट लिया बिकॉज टाइप ए में लोअर लिमिट इज 0 बट अपर लिमिट इट में बी 1 2 3 4 2 पाई 3 पाई व्हाटएवर। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में किया और आज भी ये कर लिए। टाइप 2 यानी कि लिमिट इज -a to a, इन दैट केस देयर आर टू पॉसिबिलिटी इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर आप चाहे तो इनका कंसेप्ट यूज करके करो या विदाउट यूज भी कर सकते हो, बट इवन ऑड करने से आपको a0 n में 0 होने के चांसेस हैं। उसका एडवांटेज लेने के लिए हम लोगों ने इवन ऑड का फंडा यूज किया और पहला ही क्वेश्चन हमने चूज किया जो कि इवन निकला और इवन की वजह से हमने bn कैलकुलेट किया ही नहीं, सिर्फ a0 an कैलकुलेट किया और उसमें भी a0 हमको ग्राफ इतना सिस्टमेटिक था कि वो आंसर 0 मिल गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आई मीन पार्ट टाइप 2 से, आई मीन नॉट टाइप 2, इसको -a to a इंटरवल वाला। तो फर्स्ट इंटरवल फोरियर सीरीज ऑफ 0 to a, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हो, दैट इज वन ऑफ द वेराइटी एंड सेकंड वेराइटी इज द -a to a। तो उससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल आज सॉल्व किया है जो कि इवन निकला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और भी सारे क्वेश्चन जो इवन और जो भी रहेगा वो देखते हैं लेट्स सी। ठीक है, अभी जैसे मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पहले से मालूम है कि मॉड वाला क्वेश्चन ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, तो वो हम लोग इवन फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। So that's all for today. Thank you.